اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے، جو کہ ظاہری عمل ایمان میں جو ظاہری عمل ہے اس کا اسے اسلام کہتے ہیں۔ اور ایمان اندر کی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی، جس کی بیس پہ ہی میں ظاہری عمل کر سکتی ہوں، یعنی کہ جیسے نماز، روزہ، یہ سب چیزیں، حج وغیرہ، یہ اندر کا ایمان مضبوط ہونے کے باوجود ہی میں یہ سب فرائض کر سکتی ہوں۔ اگر میری اندر کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہوگا تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور ایمان کا مطلب ہے امن و شانتی۔ میرا ایمان اتنا مضبوط ہو، اندر سے اتنا امن شانتی ہو کہ میں دوسروں کو بھی میرے ذریعے انسان امن شانتی میں رہیں، اسے کہتے ہیں اسلام۔ لیکن کیا ہو رہا ہے آج کے دور میں؟ ایمان کہاں تک ہمارا پہنچا ہوا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں دوسروں پہ، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا یہی ایمان ہے؟ یہی ایمان ہے ہمارا؟ اسی ایمان کہتے ہیں کہ کسی کو پریشان کرنا، دھوکہ دینا، تکلیفیں پہنچانے، نہ جانے کیا کیا اس بیچارے کو پریشان کرنا، اسے ایمان نہیں کہتے۔ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ، مطلب یعنی کہ سبھی سمجھ رہے ہوں گے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہم کسے کہتے ہیں اور کیا شریعت کے میں آتے ہیں۔ وہ سب میرا امتی کر سکتا ہے، صرف نہیں کر سکتا تو دو نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے دو؟ یہ دو وہ چیزیں ہیں جسے ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ ارے ہم تو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بلکہ یہ چیز کہ ارے بیٹا ایسے نہیں، ایسے کرنا، ارے اپنے دوست کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا۔ دھوکہ، جھوٹ، یہ دو چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا امتی دو کام نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آج کا یہ ذہن بن چکا ہے ہمارا، یہ جھوٹ تو ہم خود بھی بولنا رگ نسل میں بھرا ہوا ہے، بچوں کو بھی تربیت دی جاتی ہے، کیونکہ جو معاشرہ اٹھتا ہے بڑوں سے ہی بچوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ بڑے ہی سکھاتے ہیں بچوں کو بات بات پہ، ارے تو نے ایسے کیوں کرا تھا، تجھے تو ایسے کہنا چاہیے تھا وقت پہ، ارے تو نے تو اپنی کچی کر لی، کرکری کر لی، دھوکہ دینا چاہیے تھا تو تیری جیب میں اتنا پیسہ آ جاتا، اتنی چیز آ جاتی۔ یہ بچوں کی پختگی ماں باپ ہی کرتے ہیں، جھوٹ اور دھوکے سے۔ اور ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ہر گناہ جسے میں اور آپ اپنی نظروں میں گناہ سمجھتے ہیں، ہمارے نبی فرما رہے ہیں ہر گناہ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا تو دو نہیں کر سکتا، جھوٹ اور دھوکہ۔ اب دیکھو کیا چیز ہے، ہمارا ایمان کس درجے تک ہم گرا چکے ہیں، پھر ہم کیوں نہیں روئیں گے؟ تو ہمیں تو رونا ہی رونا ہے زندگی بھر کے گھٹنوں میں سر دے کے، کیونکہ جو چیز ہمیں منع کری گئی ہے، جو امتی کر ہی نہیں سکتا، وہ ہماری نس نس رگ میں واقف ہے، جھوٹ، فریب، دھوکہ۔ اور ہمارے نبی فرما رہے ہیں یہ میرا امتی نہیں کر سکتا، سب گناہ کر سکتا ہے۔ ہم اور گناہ کو گناہ سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا کوئی بیچارہ رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے نہ دیکھیں، اسے کچھ کھاتا ہوا دیکھ لیں، پھر دیکھو کیا ہم کہتے ہیں، دھجی اڑاتے ہیں، ارے کتنا بدتمیز انسان ہے، ارے ہم نے تو اسے خود دیکھا رمضان میں کھا رہا تھا، اور اگر کھا ہی رہا تھا تو کم سے کم ظاہر تو نہ کرتا، رہے بازار میں کھلا چاٹ کھا رہا تھا کھڑا ہو کے۔ کیا نہیں ایسا ہوتا؟ ہم اسے گناہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ یہ گناہ نہیں ہے، ارے بھائی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ میں ایک ہے گناہ۔ لیکن میں تو یہ بات کر رہی ہوں، یہاں میرا مطلب کہنے کا یہ کہ میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی کہتے ہیں میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ، دھوکہ۔ دھوکے سے ایک فریب ورڈ بھی اٹھتا ہے، اور جھوٹ کیا چیز ہے؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا تک نہیں، سوچا ہی نہیں، تو تبھی تو ہماری نس نس رگ میں بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم کبھی ذرہ برابر بھی اس کی طرف دھیان دے دیتے کہ جھوٹ میرے نبی نے کیوں منع کرا ہے، کیا کہا ہے کہ میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا جھوٹا دھوکے باز، ذرا سا بھی سوچتا رہے، ایک جھوٹ کتنے لوگوں کو برباد کرتا ہے، کتنے گھروں میں آگ لگاتا ہے،
कितने आंसुओं की नदी खड़ी करता है, कितना इंसान को परेशान करता है। मैं आपको बताती हूँ कुरान से कि जैसे कि एक झूठ ने हमारे नबी के घर को ही रुला दिया, एक झूठ ने मेरे नबी के घर को ही रुला दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के ऊपर उबई अब्दुल्ला बिन उबई ने इल्ज़ाम लगाया आखिरी दर्जे का, और यहाँ तक कि सोसाइटी में खलल मच गई बुरी तरीके से, और हज़रत आयशा को पता तक नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में हज़रत आयशा की तरफ से चेंजेस आ चुके थे। हज़रत आयशा सोच रही थी ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग चुका 1 महीना पहले, और इसकी काफ़ी शोहरत हो रही है सोसाइटी में। हज़रत आयशा 1 महीने के बाद घर से बाहर जब निकली, तब उनको पता चला मामले का कि उनके ऊपर आखिरी दर्जे का इल्ज़ाम लग चुका, पाक दामन औरत। और ये इल्ज़ाम सुन के उनकी हालत ख़राब हो गई, आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, ना खाना ना पीना ना सोना, हालत बड़ी अलग हो चुकी। फिर हमारे नबी क्या फरमाते हैं, आयशा देखो ज़रा गौर करो क्या फरमाते हैं, आयशा ज़रा अगर तुमसे कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो। हज़रत आयशा कहती हैं मैंने कहा मैं अपने अल्लाह से बात करती हूँ, या अल्लाह, इतना ही कहना था, अल्लाह से मदद मांगनी थी। अल्लाह ने उनका जिक्र कुरान शरीफ में उतारा, उनकी पाक दामनी अल्लाह ने कुरान शरीफ में नाजिल फरमाई। देखो जिसकी पाक दामनी का जिक्र अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हो कुरान शरीफ में, तो एक झूठ ने हमारे नबी के घर तक को कितना परेशान करा। नबी की भी हालत ख़राब, ना खाना अच्छा लगे, ना पीना अच्छा लगे, ना सोना अच्छा लगे, परेशानी की हालत से एक घर, हमारे नबी का घर भी परेशान हो गया एक झूठ से। सिर्फ किससे? एक झूठ से, किसी के चोरी करने से नहीं, किसी के रोज़ा ना रखने की वजह से नहीं, किसी को एक झूठ की वजह से। क्योंकि ये चीज़ इंसान को यहाँ अंदाज़ा नहीं लगा दे सकती कि क्या सच है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। झूठ में वो ताकत है जो इंसान, दूसरा इंसान, उसको ये अंदाज़ा नहीं हो सकता सही और गलत क्या है। अच्छे अच्छे दिमाग वाले इंसान बहक जाते हैं झूठ की रोह में। तभी तो मेरे नबी ने झूठ से मना फरमाया। और आज हमारा मुआशरा क्या कर रहा है, हमारा ईमान, हम कितना गिरा चुके हैं अपने ईमान को। देखो मैं तो बात उससे कर रही हूँ जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में करा है। हज़रत आयशा की पाक दामनी बयान करी है, अब्दुल्ला बिन उबई ने तोहमत लगाई एक झूठ के ज़रिए, मैं तो उसका जिक्र कर रही हूँ। क्या ये आज हमारे मुआशरे में नहीं हो रहा है? क्या हम इसे गलत समझते हैं? क्या यही हमारा ईमान है? इसी ईमान कहते हैं तकलीफ़ें पहुँचाओ, परेशान करो, झूठ बोलो, वाह क्या मुसलमान की शान यही है? और धोखा देना, ये देखो सब कुछ क्या है। आज का तो हिसाब ये हो चुका कि शैतान कहता है मुसलमान, तू मुसलमान ज़रूर कहता है अपने आप को, लेकिन तूने तो अपने आप को इतना जलील कर लिया, इतना गिरा लिया, इतना जलील कर लिया। अब तो क्या हुआ, मैं तेरा मुरीद हुआ, तू मेरा पीर हुआ। देखो क्या यही नहीं है आजकल के हमारे सबके ईमान की हालत अंदर से। हम इस गुनाह को कोई गुनाह ही नहीं समझते। बड़े अफसोस की बात, काश ये समझ में आ जाए। एक ज़बान को हिलाने से पहले सोच लें, तोल लें कि कल इसका हिसाब है। काश अगर हम ये कर लें तो किस बुनियाद पे हम खड़े हो जाएंगे, ईमान की मजबूती पे, जो कि अल्लाह ने जिक्र करा है। ए मेरे बंदे, अगर तू आखरत को देख देख के ज़िंदगी गुजारेगा तो मैं दुनिया में तुझे हर मुश्किल से निकालूंगा, हर मुश्किल से निकालूंगा।
अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इस दुनिया को हुक्म दिया है, दुनिया जो तुझे तेरे पीछे दौड़े तू उसको दौड़ा 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 दौड़ा, जो तुझे छोड़ कर भागे तो उसके जूते का तलवा बन जा। क्या हुक्म दिया मेरे अल्लाह ने इस दुनिया को। अब मैं ईमान हमारा मजबूत हो जाए, इसके कुछ तरीके बताते हैं। तरीके क्या हैं? शायद अगर हम इन तरीक़ों पे चल लें तो शायद हम कुछ तो हमारे अंदर ईमान का हिसाब आ जाए, जो कि होना चाहिए एक मोमिन के अंदर। वो ये कि देखो, दुनियावी एतबार से अपने आप को हमेशा अपने से ऊंचों लोगों के से मत मिलाओ, मत देखो। दुनिया में जीने के लिए अपने आप को हमेशा अपने से नीचे को देखो। नीचे को देखने का क्या मतलब है? ऊंचों को देखने का क्या मतलब? ऊंचों को देखने का मतलब ये, जो मेरी हैसियत रुपए पैसे की हो, अगर मैं उस हैसियत से ज़्यादा लोगों को ऊपर निगाह रखूँगी तो मेरी ज़िंदगी में यही चीज़ रह जाएगी, बस भाई उसके पास तो इतना है, मेरे पास तो है ही नहीं। अब मुझे करना क्या है? कुछ तो करना है ना। फिर मुझे तो यही करना है, जब मेरे पास है नहीं, दिल ललचा रहा है, शैतान भगा रहा है, अरे भाई इधर से हटाओ उधर से हटाओ, ये कर लो वो कर लो, जो भी कर लूँ वो काम, सब जो भी मिल जाए वो काम। ये तो हुआ ऊंचों से देखने का मतलब। नीचे को देखने का क्या मतलब है? भाई मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मेरा भी दिल चाह रहा है, मेरे पास होना चाहिए था, बच्चों का भी दिल चाह रहा है, होना चाहिए था, और होना भी चाहिए। दिल जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया अता की है, तो हमारा दिल दुनिया में है, तो हमें दुनियावी चीज़ों की तलब भी होनी चाहिए, और नहीं होगी तो हम पागल हैं। दुनियावी चीज़ों की तलब होना ही हमें शो करता है हम इस दुनिया में हैं। अल्लाह ने हमें एक दिल दिया है, एक दिमाग दिया, एक सोच दिया। अगर दिल में तलब ही दुनिया की ना हो, फिर ये इम्तिहान कैसा, ये दुनिया की तलब कैसी? फिर तो कुछ भी नहीं। फिर तो जब तलब ही नहीं तो फिर मैं ना कुछ करूं तो फिर मतलब जब तलब ही नहीं है तो फिर बचने का कोई मतलब ही नहीं है। तलब से ही तो मैं बचूंगी। मसला नहीं, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मेरा दिल चाह रहा होनी भी चाहिए जब मैं दुनिया में हूँ। यह कायनात अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाई है, इस कायनात में जो भी कुछ है इंसानों के लिए है। और अगर फिर दिल चाहता है तो कौन से गुनाह की बात है भाई, होनी चाहिए। फिर भी नहीं है, अब करना क्या है? अब अपने से नीचे को देखना है। वो कैसे? मसलन उसी दौरान दिल में बात कुछ चल रही है, दिमाग में चल रही है, आपको मालूम है आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी निगाह किसी गरीब पर पड़ती है, अपने से नीचे, यानी कि मसले को दरवाजे पे ही फकीर आ गया, तो आपकी निगाह जब उस पर पड़े तो आप ये सोचें, ये बेचारा मेरी आंखों के सामने किस हाल में खड़ा है। अरे भाई ये भी तो एक इंसान है, इसका भी तो दिल है, इसका भी तो दिमाग है, इसकी भी तो ज़रूरतें हैं। क्या इसकी ज़रूरतें नहीं है? बस सारी ज़रूरतें दुनिया में मेरे लिए रह गई हैं, मेरा ही दिल दिमाग रह गया है, मेरी ख्वाहिशें रह गई हैं। जहाँ दिमाग इस तरफ दौड़ेगा, दिल इस तरफ दौड़ेगा, तो आप कहेंगे अंदर से, दिल की आवाज़ आपको कहेगी, ये बदकिस्मत इंसान, अल्लाह की ना शुक्रगुजार बंदे, अल्लाह का शुक्र अदा कर। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, तूने मुझे किन किन नेमतों से नवाजा। ये बेचारा किस हाल में खड़ा हुआ है, तूने मुझे कितनी नेमतें अता करी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। जहाँ आपकी निगाह यहाँ चली गई, यकीन जानो अल्लाह ताला आपको वो ईमान की, ये नज़रिया आपका अल्लाह ताला आपको वो ईमान महसूस करोगे अंदर से कि आप हाथ उठाओगे, फरिश्ते उस पर आमीन कहेंगे। हमारा ईमान ही तो कमज़ोर है, हम अंदर से खड़े ही नहीं हो सकते सही उस पे कि जो जैसा कि हमारे अल्लाह ने चाहे। हाँ, हम अपने आप को जलील करवाना, जलील होना पसंद करते हैं, लेकिन सही तरीके से चलना पसंद नहीं करते। और दुनियावी बात, दीन के एतबार से हमेशा अपने से ऊंचों को देखो कि भाई किसी को अच्छा काम करता देखो तो देखो भाई मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। देखो तो ज़रा ये इंसान कितनी अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ा है, देखो इसकी नमाज को पढ़ता देख के मेरी तो
दिल चाहा कि देखो मैं भी ऐसी पढ़ूँ नमाज, मैं भी ऐसी नमाज पढ़ूँ। अपने आप को गया गुजरा समझना। और ये बात सच है कि हम ऐसी नमाज पढ़ते ही नहीं जैसे कि गोया कि हमें पढ़नी चाहिए। हमारा कुरान शरीफ ऐसा है ही नहीं जैसा कि होना चाहिए। अपने आप को गया गुजरा हुआ समझना। जब हम ये समझेंगे तो हम यकीनन कदम उठाएंगे कुछ सीखने के लिए और करने के लिए। जब भी इंसान कोई कदम उठाते है समझता है अंदर से मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अगर इंसान सोच ले भाई मुझे तो नमाज तो पढ़नी आ गई, सिर पे टोपी रखनी है, दुपट्टा ओढ़ के सजदा करना आ गया, भाई मुझे सब कुछ आ चुका है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यकीन जाने बस यही चीज़ अंदर से खोखला कर देगी। बस हम यही करते दिखाई देंगे और अंदर से हम बिल्कुल खोखले होंगे, खोखले। ईमान जो है अंदर से हम एक चीज़ और सिखाता है, अखलाक। हमें किसके साथ क्या रवैया करना चाहिए। इस चीज़ को आज का मुआशरा बिल्कुल भूला हुआ है। जो सुन लिया कान से सब कुछ सही, जो इधर उधर से सुन लिया सब कुछ सही, ना किसी को तहकीक की ज़रूरत है, ना किसी को ढंग से बात करने की ज़रूरत है, ना किसी को किसी के रिश्तों का पता कि किसी के रिश्ते क्या होते हैं। बहन का बहन से क्या रिश्ता है, माँ का बेटे से क्या रिश्ता है, बेटी का माँ से क्या रिश्ता है, बाप का बेटी से क्या रिश्ता है, हमें इसके साथ किस किस्म के अखलाक रखने चाहिए, पड़ोसी से किस किस्म के अखलाक होने चाहिए। ये सब चीज़ें मुआशरे की बिल्कुल 0% पे जाके पहुँच चुकी हैं। आज का ज़माना बहुत ही अलग किस्म का हो चुका है। इसीलिए तो हमारा ईमान कमज़ोर हो रहा है। ईमान कमज़ोर होने की वजह यही है कि हम देखते नहीं अंदर क्या, हम दूसरों को देख के चलते थे। जैसा किसी ने कहा हमें भी भाई वैसे ही कर ले। भाई ये तो देखो कि अल्लाह ने मुझ पर क्या चीज़ फर्ज करी है, मेरा ईमान मुझे क्या सिखाता है। अब देखो ईमान की एक वो कि हमारा ईमान अंदर से कितना कमज़ोर हो चुका है, और जो नबी थे उनका ईमान कैसा था। आज हमारा ईमान कहाँ पहुँचा है। मूसा अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, जा रहे हैं, पीछे पीछे फिरो आदि अपने साथियों के साथ आगे समुद्र। अब मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहते हैं मूसा तूने हमें मरवा दिया, कहाँ ले आया तू, हम तो गए बस, अब आगे फिरौन पीछे समुद्र, अब तो हम गए। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं भाई नहीं, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ताला समुद्र को हुक्म देते हैं पानी को सूख जाओ, रास्ता बना। समुद्र खुश्क होके मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथियों को रास्ता देता है। पीछे पीछे फिरौन आता है, वो देखता है समुद्र खुश्क, मूसा ने रास्ता पार कर गया। वो तो फिरौन भी समुद्र में अपने लश्कर समीर उतरता है। जैसे ही उतरता है अल्लाह ताला पानी को हुक्म देते हैं इकट्ठा हो जाओ। पानी इकट्ठा हुआ, अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके साथियों को जिल्लत से डुबा के मारा। और जो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का साथ दिया तो अल्लाह ताला की ताकत बस वहीं तक नहीं ख़त्म हो गई कि बस वहीं पे ख़त्म हो गई। ये अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा ये ईमान होना चाहिए अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरी शारक से भी ज़्यादा मेरे करीब है। बस अब हमें क्या लगता है कि बस अल्लाह की ताकत तो वहीं तक ख़त्म हो चुकी है, हमें तो एक सूखे पत्ते की तरह खड़े रह गए हमें तो अपने आप ही हाथ पैर चला के जो कुछ करना है हम करेंगे, जब करेंगे तो जब हमें मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया तो असबाब पे टिकी हुई है, ये बात सच है। अल्लाह ने दुनिया को असबाब पे टिकाया, लेकिन करने वाली ज़ात अल्लाह की है। यही तो है कि अगर अल्लाह ताला दुनिया को असबाब पे ना टिकाते तो फिर तो कुछ बात ही नहीं थी। अल्लाह ताला ने असबाब पे टिका के डोर तो अपने हाथ में थामी हुई है। तो ये हमारा ईमान है, हमें इस पे यकीन आ जाए कि करने वाली ज़ात एक है। चलो आओ करते हैं तौबा के
سجدے بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے